आपको अहम खबर दें, गवादर में धमाका और फायरिंग की आवाजें। जीपीए कम्प्लेक्स के अंदर शदीद फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आज एक बड़ा हमला गवादर की जो अथॉरिटीज हैं वहां पे किया गया है। तो ये बीएलए की जानिब से गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया गया है। इस पर पूरी कौम तो मजम्मत करी है और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस भी तैयार हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी नाकाम क्यों है हम इसको कंट्रोल करने में? बहुत बड़ा हमला हुआ है बलूचिस्तान में। मजीद ब्रिगेड ने हमला किया है ग्वादर में, जब एक बहुत बड़ी बैठक हो रही थी पाकिस्तानी फौज की। इस हमले के नतीजे में कम से कम पाकिस्तानी फौज के 25 फौजी हलाक हुए हैं। ये बात गवादर तक पहुंच जाएगी, ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। खुद कुछ गाड़ी जो है वो टकराई गई और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स और जो मशीन गन्स हैं और उसके अलावा दीगर तबाहकुन हथियारों के साथ दहशतगर्दों ने अटैक किया। गवादर से आपने निकालना है, लॉयड और चाइनीज को भगाना है, तो दहशतगर्दों के प्रॉक्सीज को वहां पे लॉन्च करके भगाना है और उसी सूरत में भगाया जा सकता है। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। তো বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা খবর তো অবশ্যই পেয়েছিলেন, আজ থেকে কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে টিটিপি যেভাবে আক্রমণ করেছিল, তো তারই রিটালিয়েশন হিসাবে পাকিস্তান আবার আফগান লাগোয়া সীমান্তে তালেবানের লিডারকে মারার জন্য, সাথে তালেবানিদের মারার জন্য তাদের উপর এয়ার স্ট্রাইক করে ভোর 3টে নাগাদ। যে অ্যাটাকে পাকিস্তানের আইএসপিআর দাবি করেছিল এই আক্রমণে অনেক টিটিপি মারা গেছে, এমনকি টিটিপির লিডার পর্যন্ত। কিন্তু পরে খবর তো এটাও বেরিয়ে আসে যে না, টিটিপি লিডার তাদের এই আক্রমণে বা এয়ার স্ট্রাইকে মারা যায়নি। তার প্রুভমেন্ট টিটিপি লিডার নিজে ভিডিও বানিয়ে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে জানিয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, তারই পরে কিন্তু তালিবানের মুখপাত্র তরফ থেকে ওয়ার্নিং দিয়ে পাকিস্তানকে বলেছিল এর যা রিটালিয়েশন হবে সেটা পাকিস্তান কখনো কল্পনা করেনি। এমনকি তারা এটা পর্যন্ত বলেছিল পাকিস্তানের আক্রমণে 8 জন লোক মারা যায়, তার মধ্যে 3 জন বাচ্চা ছিল। যেটা হোক, এই ঘটনা যেতে না যেতেই বিএলএ আর্মি চীন আর পাকিস্তানের তাদের ভালোবাসার যে প্রজেক্ট, যেটার নাম হচ্ছে সিপিএসি, তার উপর তাবড়তোড় কারবাই আক্রমণ করে দেয়। সেই আক্রমণে এতটা ড্যামেজ হয়েছিল পাকিস্তানের, যেটা পাকিস্তান এখনো লুকানোর চেষ্টা করছে। শুধু এখানে শেষ নয়, একদিকে তালিবান তাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে আক্রমণ করছে, তো অপরদিকে বিএলএ। শোনা যাচ্ছে এই আক্রমণে যে এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানের 40 থেকে 50 জন সেনা মারা যায়, কিন্তু রিয়েলিটি কি সেটা পাকিস্তানে জানে। আপনারা তো এটা ভালোভাবে জানেন যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কখনো তাদের রিয়েল ডেটাকে পাবলিশ করে না, যেমনটা এখনো পর্যন্ত চীন করে। হ্যাঁ বন্ধুরা, চীনের মতো পাকিস্তানও তাদের রিয়েল ডেটা পাবলিশ করে না। তাদের সোশ্যাল মিডিয়া কোথাও বলা হচ্ছে 30, কোথাও 40, কোথাও 50, কিন্তু রিয়েলিটি কি সেটা পাকিস্তানের আল্লাহ জানে। খবর তো এটাও আছে যে সেই আক্রমণে চীনের কিছু লোক মারা যায়, কিন্তু বন্ধুরা এটা একদমই জানি না। এটার উপর চীন পাকিস্তানের উপর প্রচন্ড ভড়কে গেছে, এমনকি ওয়ার্নিং পর্যন্ত এটা দিয়েছে যে ওখানকার সুরক্ষা যদি তোমরা করতে না পারো তাহলে সেই সুরক্ষা আমাদের উপর ছেড়ে দাও। তো অপরদিকে বিএলএ পাকিস্তান আর চীনকে বলে দিয়েছে যে এটা আমাদের মেসেজ ছিল, এখানে যে আসুক না কেন, হোক পাকিস্তান বা চায়না, কাউকে আমরা ছাড়বো না। সময় থাকতে থাকতে তোমরা এখান থেকে মুভ অন করো, নইলে আমরা তাড়ালে এখানকার পরিণাম আরো ভয়ঙ্কর হবে চীন আর পাকিস্তানের উপর। তো বন্ধুরা, পুরো ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন। इस हमले के नतीजे में कम से कम पाकिस्तानी फौज के 25 फौजी हलाक हुए हैं, जिनमें 2 कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के 6 अहलकार, आईएसआई के 8 अहलकार और आर्मी और नेवी के 14 जो है फौजी ये मारे गए हैं और ये ग्वादर में हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी हमले जारी हैं और बैरून मुल्क से भी हमले जारी हैं। अफगान जो तालिबान की फौज है, उन्होंने पाकिस्तान की फौज पर हमला करके तकरीबन 11 पाकिस्तानी फौजी हलाक कर दिए हैं पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा आप जानते हैं कि ईरान 2 हमले पाकिस्तान पे कर चुका है और अनकरीब ये कहा जा रहा है कि एक और हमला पाकिस्तान पे होगा। तो पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से भी हमले हो रहे हैं, ईरान से भी हो रहे हैं और उस पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले भी जारी हैं और ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। तो नाज़रीन, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर वो सरमचार हों, चाहे वो टीटीपी के दहशतगर्द हों, चाहे वो बीएलए के हों, बीएलएफ के हों, वो तमाम के तमाम दहशतगर्द उनको ऑपरेट अफगानिस्तान से किया जा रहा है। जो जीपीए है वहां पे अटैक करने का मकसद ये था कि जो सीपैक मंसूबा है उसको मुकम्मल तौर पे
सबूताज किया जाए। इससे पहले भी अटैक होते रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने जो है वो IMF से लोन लेने के चक्कर में उसको भी आपने जो है वो कहा कि हम इसमें कोई मजीद पैसा नहीं डालेंगे, चाइनीज आपको छोड़ेंगे, 500-600 अरब रुपए आपने उनका देना भी, बिल देना है, वो नहीं आप दे पा रहे तो उन्होंने तो मुकदमे, उन्होंने तो अपने फायदे के जो सौदे किए थे तो आपको एज अ सॉवरन आपने साइन किया था, तो जाहिर बात है आपने जवाब तो देना है ना जी। तो अभी आप जवाब देना चाहते हैं जाके, आप वहां पे भी जो है वो एक तरफ पे चाइना को भी एलिनेट करना है, लेकिन एलिनेट चाइना गवादर आपने उनको दिया हुआ है 100 साल के लिए, गवादर वो आपके ख्याल में इतनी आसानी से छोड़ देंगे? तो फिर सर इस सारे सिनेरियो के अंदर जाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बलूचिस्तान में हमेशा की तरह खराब करके ये काम कराया जा सकता है, विच विल प्ले इन द हैंड्स ऑफ द एनिमीज ऑफ और द इंटरनेशनल प्लानर्स जो कि पाकिस्तान को जो है बैलकनाइजेशन करना चाहते हैं, पश्तूनिस्तान अलहदा, ग्रेटर पंजाब अलहदा, कश्मीर उधर, GB उधर तोड़ना चाहते हैं जो पाकिस्तान को, उनके गेम प्लान के एन मुताबिक ये काम है। क्योंकि गवादर से आपने निकालना है, लॉयड और चाइनीज को भगाना है, तो दहशतगर्दों के प्रॉक्सीज को वहां पे लॉन्च करके भगाना है, और उसी सूरत में भगाया जा सकता है। तो आप चाइनीज पैसा नहीं दे तो चाइनीज गवादर पे कब्जा कर लेंगे, और चाइनीज गवादर डीप सी पोर्ट का कब्जे का मतलब है कि चाइनीज नेवी भी अगर वहां पे आ सकती है तो पूरे रीजन के ऊपर जो आगे पूरा आपका ऑयल का बेल्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके ऊपर चाइना आके बैठ जाएगा जाके। अब वहां पे इसके ऊपर जो है ये जियो स्ट्रेटेजिकली अगर इसको देखा जाए तो अमेरिका ये नहीं चाहता, वो चाहता है इंडिया एक तो काउंटरवेट बने, और दूसरा बैरी बेड़ा इस वक्त भी अमेरिकन फ्लीट सबसे बड़ा है, तो वो क्यों ये चाहेगा? तो चाइना को जो है वो किसी भी कानूनी तरीके से तो निकाला जा नहीं सकता, तो 2 नंबरी करके ही निकाला जा सकता है, और दहशतगर्दी को प्रॉक्सीज इस्तेमाल करके उनको मार पीट के भगाया जा सकता है अगर वो जाएं तो, और फिर अमेरिका आके कब्जा कर ले और हम कहेंगे जी चाइनीज तो जा चुके हैं, ऑपरेट ही नहीं करते तो हम क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी क्रिएट तो ये कर रहे हैं चाइना को वहां से भगाने के लिए, क्योंकि अमेरिका को वहां लाना है और IMF के कर्जे लेने हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि शुरू तो ये कर देंगे, आगे इनके कंट्रोल से ये चीज निकल जाएगी, क्योंकि आप तो पैसों की तकसीम पे ही लड़ते रह जाएंगे जो इस वक्त लड़ाइयां लगी हुई हैं। तो ये तो जो बलूचिस्तान वालों को तो टेस्ट ऑफ फ्रीडम मिलेगा तो कहेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अमेरिका हमारी सपोर्ट के अंदर आएगा, अमेरिका भी पश्तूनिस्तान, जो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान अकेले तो बलोच कौम बहुत कम है ना जी, तो बलूचिस्तान और ये पठान सारे के सारे जब बेल्ट पूरा मिल जाएगा ऊपर गिलगित बल्तिस्तान चतराल तक, तो वो कहेंगे ठीक है अमेरिका में सपोर्ट कर रहा है, हमारी अपनी करेंसी होगी। उन्होंने तो पूरा प्लान दिया है जिसको मैंने और आपने सर इधर डिस्कस किया है कि किस तरह इन्होंने प्लान किया अपना इकोनॉमी आगे चलना, फौज वो कहते हैं पूरे का पूरा अपने पास रखो सफेद हाथी, और अल्टीमेटली आगे चल के सिंध भी घर वापसी के चक्कर में जो है वहां पे जाएगा, वापस स्टेट ऑफ गुजरात में जाएगा, पंजाब जो है ग्रेटर पंजाब का हिस्सा बन जाएगा, और पंजाब में जो आपने इस वक्त लोग बिठाए हुए हैं वो कहते हैं जी हमारी प्रॉपर्टी प्राइसेस चढ़ जाएंगी, क्या पाकिस्तान का लेना देना, अगर आपके पाकिस्तान नहीं टूट सकता तो पाकिस्तान तो एक दफा टूट चुका है। दिस इज वेरी सीरियस सर, दिस इज वेरी सीरियस। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान के पास कोई मुनज़्ज़म फौज नहीं है, कोई उसके पास इतना मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, अफगानिस्तान के पास अगर एयरफोर्स नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम खदशात के हवाले से बात करें तो ये खदशात मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक शदीद लहर शुरू हो सकती है, और इन्हीं 1-2 दिनों में ये खदशात थे कि पाकिस्तान में कोई बड़ा हमला हो सकता है। तो बंधुरा एटाई छिलो आजकेर ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। এর সাথে সাথে আপনারা এটাও লিখে জানাবেন এই যে এই মুহূর্তে তালিবান আর পাকিস্তানের মাঝে যে ঝামেলা চলছে সেই ঝামেলার ভারতের কি সুবিধাকে ওঠানো উচিত, কারণ আপনারা জানেন জল ঘোলা হয়ে গেছে, এই সুযোগে মাছ ধরলে কেউ কোনো কিছু বলার নেই করার নেই। আপনারা জানেন যেভাবে তালিবান পাকিস্তানিকে ঠোকাই করছে, তারপর আবার তালিবান ভারতের কাছে M14 রাইফেল থেকে শুরু করে এক্সকালিভার সেলকে পর্যন্ত চেয়েছে, যেটা ভারত সরকার এখন প্রকাশ্যে না হলেও ব্যাকওয়ার্ডে মানে পিছনে অবশ্যই দেওয়া উচিত কিনা, যেটা হোক বন্ধুরা এরপর আপনাদের কি মতামত সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।